أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعين ونستغفره ونشكره ونتوسل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في المحكم كتابه والقرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات بھیجیں وآل محمد. محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سامعین محترم، سب سے پہلے آپ تمام احباب کی خدمت میں آج کے روز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. آج کا دن کہ جو کہ منسوب ہے، جو شب ہے، بہرحال آج کوئی جگہ پر 17 رہی ہے اور کچھ مقامات پر شب 17 ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ فرق نہیں کرتا کہ شب 17 ہے یا ابھی 17 نہیں ہوئی ہے. مسئلہ جو حقیقت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اگر ان ایام میں جشن کر رہے ہیں یا ان کے بارے میں سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، تو اہمیت اور فضیلت ہمارے لیے کمال یہ رکھتی ہے کہ ہم ان کی سیرت پر خود کتنا عمل کر رہے ہیں. اذان محترم، مدح کرنا اور فضیلتوں کو بیان کرنا واقعاً ایک کمال کا درجہ رکھتا ہے، لیکن میری نظر یہ بھی کہنی چاہتی ہے کہ انسان کا کمال اس وقت ہے کہ جب انسان جس کی مدح کر رہا ہے اس کی سیرت کو بھی جانے، کیونکہ سیرت کا بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انسان کے دل میں محبت کو پیدا کیا جائے. سیرت محبت پیدا نہیں کرتی، بلکہ سیرت انسان کو انسان بننے کا طریقہ سکھاتی ہے. کیونکہ فرق کرتا ہے عزیزان محترم، کیونکہ اکثر انسان یہ سوچتے ہیں کہ سیرت بیان ہو رہی ہے تو سیرت سے ہم داد و تحسین لے لیں، یا سیرت سے ہم فضائل بیان کر دیں، یا سیرت میں ہم محبت میں ہمارے اضافہ ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ محبت میں اضافے کے لیے بہت سی راہیں ہیں. ہم واقعاً فضیلتوں کو بیان کریں، فضائل بیان کریں، مختلف واقعات کو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمارے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے. لیکن سیرت کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس سیرت کو سنے، اس سیرت کو محسوس کرے، تو خود اس پر عمل کرنے کی کوشش کر پائے. حقیقت یہ ہے، رسول اکرم کا کردار، رسول اکرم کی زندگی، رسول اکرم کا اخلاق، رسول اکرم کا علم، یہ تمام چیزیں، مقصد یہ نہیں تھا کہ سماج یہ دیکھتا رہے، لوگ یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارا رسول کتنا بااخلاق ہے، لوگ یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارا رسول کتنا عالم ہے، یا ہمارا رسول کس قدر خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے. ہمارے لیے یہ فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ ہم اس رسول کے ماننے والے ہیں کہ جس کا اخلاق اس عالم پر تھا کہ پروردگار بھی اس کے اخلاق
की तारीफ़ कर रहा है, तो बस जब हम उसका कलमा पढ़ रहे हैं, जब उसकी हम एहतराम कर रहे हैं, उसकी इताअत कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी वाजिब हो जाता है, हमारे लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि हम भी वही अखलाक पैदा करें कि जो हमारे रसूल का अखलाक था, वही हम इल्म पैदा करें जो हमारे रसूल का इल्म था, हम वही अमल करने की कोशिश करें कि जो जो अमल हमारा रसूल किया करता था। ऐसा ना हो कि अगर हम ये देख रहे हैं, हमने वाक़यात में सुना कि रसूल गरीबों की मदद कर रहे हैं, हम कलमा भी पढ़ रहे हैं मगर गरीबों की मदद नहीं कर रहे। हमने वाक़यात में पढ़ा कि रसूल का अखलाक का आलम ये था कि रसूल किसी के बुरा कहने पर बुरा नहीं कहते थे, बल्कि उसकी मजबूरी को दूर करने की कोशिश करते थे। तो बस हमारे लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जब हम कलमा तौहीद पढ़ रहे हैं, जब कलमा रसूल पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए भी वाजिब हो जाता है कि हम भी अपने अंदर वो अखलाक पैदा करेंगे जो रसूल का अखलाक था। बहरहाल ये बहुत से वाक़यात है, बहुत मशहूर वाक़यात है जो कि हम वाक़न अगर देखें तो हमारे लिए वाक़न ये चीज़ वाज़े हो जाएगी कि अगर हमने अपने आप को इस दर से लाकर मंसूब कर दिया, इस दर से लाकर अपने आप को निस्बत दे दी, तो यकीन जान लेना कि ये दर वो है कि जो एक मामूली से इंसान को मुसलमान बना देता है, और मुसलमान बनाने के बाद सलमान बना देता है, और सलमान बनाने के बाद मिन्ना अहलुल बैत की मंजिल पर पहुंचा देता है। तो अज़ान मोहतरम ये कोई मामूली दर नहीं है, ये दर वो है कि जिस दर पर आने के बाद भी बेज़र भी अबूज़र बन जाता है। अज़ान मोहतरम ये दर हमें ये चाहता नहीं है कि हमारा मोहताज है, बल्कि हम उस दर के मोहताज हैं। हमें चाहिए कि उस दर से जाकर अपने आप को मिलाएं, और जिस दिन अपने आप को उस दर से जाकर मिला दिया, तो यकीन जान लेना कि परवरदिगार हमारे हर अमल की वो सवाब उसके बदले में अता करेगा जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। तो अज़ान मोहतरम हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत इंतहाई ज़रूरी। बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ अपनी बात को और तमाम करना चाहता हूँ। अज़ान मोहतरम जिस तरीके से मैंने अर्ज़ किया कि वो दर है कि जिस दर पर आने के बाद भी सलमान मिन्ना अहलुल बैत की मंजिल पर पहुँच जाती है। सलमान ने क्या किया था? सलमान ने यही तो अपने आप को रसूल के दर से मंसूब कर दिया था। यानी क्या? यानी वो कि अब जो मैं कर रहा हूं वो मैं खुद नहीं कर रहा, बल्कि मैं हर वो काम कर रहा हूं कि जो मेरे रसूल ने कहा था। यही था सलमान का किरदार। सलमान दरख्त लगा रहे हैं, एक शख्स आया और आने के बाद कहा कि सलमान कि तुम ये दरख्त लगा रहे हो, तुम्हें मालूम है खजूर का दरख्त जो है वो तकरीबन 7 साल बाद जाकर मेवा देता है, और तुम्हारी उम्र लग नहीं रही कि तुम 7 साल से ज्यादा भी जी सकोगे, तो तुम क्यों दरख्त लगा रहे हो? इसका फायदा क्या है? तो सलमान चूंकि दरे रसूल पर दर्स हासिल कर चुके थे, तो फौरन जवाब देते हैं कि मैं इस वजह से लगा रहा हूं, जबकि मैंने भी अपने गुज़िश्ता दिनों में उन दरख्त के फल खाए हैं कि जिन दरख्त को मैंने खुद नहीं लगाया था, तब मैंने दूसरों के दरख्त के फल खाए थे। तो अब जब मैं जो दरख्त लगा रहा हूं, अगर कोई आकर मेरे दरख्त का फल खाएगा तो मुझ पर क्या असर होगा? यानी आपने जाना, यानी इस चीज से हमें एक चीज सलमान मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो, कभी भी अपने आप के बारे में मत सोचना, दूसरों के बारे में सोचना, क्योंकि जब इंसान अपने बारे में सोचता है तो वो फकत अपना ही रह जाता है, और जब इंसान दूसरों के बारे में सोचता है तो मोहम्मदी बन जाता है। अज़ान मोहतरम ये दर्स है कि जो हमें इस दर्स से मिल रहा है, दूसरों के बारे में सोचो ताकि तुम मोहम्मदी बन जाओ। इंसान जब दूसरों के बारे में सोचता है तो इलाही बन जाता है, मोहम्मदी बन जाता है। यही वजह है कि जब सलमान फारसी को सलमान फारसी कहकर शोर मचाया जाता था, तो रसूल ने क्या कहा कि ऐ लोगों, आज के बाद कोई सलमान को सलमान फारसी ना कहे बल्कि सलमान मोहम्मदी कहे। कहा क्यों या रसूल अल्लाह? कहा इस वजह से क्योंकि सलमान के अंदर मेरी बू पाई जाती है। मतलब मेरी बू पाई। रसूल का जुमला है कि जब इंसान की जिंदगी इस पैमाने पर आ जाती है तो परवरदिगार उसे किस मकाम पर पहुंचा देता है। तो हमारे लिए भी ज़रूरी अखलाक, ये जो मैंने अर्ज़ किया कि अपने बारे में ना सोचो बल्कि दूसरों के बारे में सोचो, ये भी एक नुक्ता है। वाकई अगर सीरत रसूल पर रोशनी डालेंगे तो हर मकाम पे यही मिलेगा कि रसूल की ज़िंदगी अपने लिए नहीं थी बल्कि दूसरों को राह रास्त पे लाने के लिए थी, क्योंकि एहसान नहीं रखते अहले बैत किसी का। अज़ान मोहतरम वाक़या मशहूर है कि रसूल खुदा एक दीवार चुन रहे थे और इतने में देखा कि एक नौजवान आया, और आने के बाद मुखातिब होकर कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि आपकी मदद करूं। रसूल ने कहा क्यों नहीं, आओ, बिस्मिल्लाह, मना नहीं किया। और ये भी एक वाक़ई सीरत रसूल का एक नुक्ता भी हो जाएगा और मैसेज भी रहेगा आलम इंसानियत के लिए भी कि कभी भी सवाब के काम के लिए लोगों को मना मत करो। यानी अगर कोई चाहता है कि आपके साथ सवाब में शरीक हो जाए तो उसको मना मत करो बल्कि उसको भी शरीक करो।
परवरदिगार की बारगाह में सवाब देने में कमी नहीं है, वो इतना सवाब जितना तुम्हें देगा उतना उसको भी देगा। ऐसा नहीं है कि उसने अगर तुमने उसे अपने साथ शरीक कर लिया तो 50-50 में तकसीम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि जितना उसके नसीब में है, जितना उसको देना था परवरदिगार उसको उतना सवाब देगा, जो शरीक हो रहा है उसको भी। ये सीरत रसूल का एक नुक्ता है कि रसूल से जब उसने आके कहा मैं शरीक होना चाहता हूँ, रसूल ने कहा क्यों नहीं, आओ शरीक हो जाओ। बहरहाल वो आमादा होता है और रसूल के साथ वो दीवार को आमादा करने के लिए तैयार हो जाता है। और जब दीवार आमादा हो जाती है, और जब दीवार आमादा हो गई, रसूल फौरन मुखातिब होकर कहते हैं कि अब तू बता तुझे क्या चाहिए। फौरन कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मुझे शहादत हासिल हो। रसूल ने फौरन हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार की बारगाह में दुआ की कि परवरदिगार इसके नसीब में शहादत को रख दे। रिवायत में मौजूद है कि उसको कुछ जंग के बाद उसे शहादत नसीब हो जाती है। तो अज़ान मोहतरम, मकसद क्या है? मकसद ये है कि कभी भी ये मत सोचो कि मैं क्या हूँ, कभी भी ये मत सोचो कि मैं किस मकाम पर हूँ। हमेशा अपने आप को दर रसूल का ग़ुलाम बना के रखो। बस एक वाक़या अर्ज़ करूँगा जो कि मारूफ़ है, लेकिन चूँकि इसको जितना बयान किया जाए कम है। कि रसूल खुदा एक रास्ते से गुज़र रहे हैं, देखा है वो जो मशहूर है कि कूड़ा फेंकने वाली कूड़ा फेंक रही थी, एक दिन कूड़ा नहीं फेंका तो रसूल फ़ौरन उसके दर पे गए और दाकुल बाब किया, पूछा कि कहाँ है। मालूम हुआ कि वो बीमार हो गई है। फ़ौरन रसूल खुदा ने मुखातिब होकर कहा कि अच्छा उसे जाकर कहो कि मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। रसूल खिदमत में गए और जाने के बाद जैसे ही उसने रसूल के चेहरे को देखा और देखने के बाद कहा कि मैं वो हूँ कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। रसूल ने कहा मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। कहा मैं वो हूँ कि जिसने हमेशा आपकी ज़ात में गुस्ताखी की है। तो रसूल ने फ़ौरन मुखातिब होकर कहा था कि वो तेरा अखलाक था, लेकिन मेरा अखलाक ये है कि मैं तेरी अयादत के लिए आऊँ। तो अज़ान मोहतरम, ये भी हमारे लिए एक वाक़ईन आज के माहौल, आज के ज़माने को देखते हुए ये दो नुक्ते हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी हैं। सीरत रसूल अगर हम जितना भी पढ़ें कम है, लेकिन ये दो नुक्ते कि जो हमारे लिए वाक़ईन जिस तरीके से हम आज की दुनिया को देखें, लोगों के रहन सहन, लोगों का अखलाक, लोगों का बर्ताव अपने रिश्तेदारों के साथ, इन तमाम चीज़ों का अगर हम आज के दौर में देखें तो ये दो नुक्ते वो हैं कि अगर इस पर हमने अमल कर लिया तो यकीन जान लेना कि परवरदिगार हमारी तमाम मुश्किलों के रास्तों को खोल देगा। एक नुक्ता क्या है? एक नुक्ता यह है कि कभी भी अपने आप को अपने लिए महदूद मत रखो, बल्कि चाहो कि दूसरा भी उससे इस्तेफादा कर सके, यानी दूसरों के लिए भी सोचो। दूसरा नुक्ता क्या है? अखलाक। ये मत सोचो तुमने अगर जितना भी रसूल का कलमा पढ़ रखा है और तुम जितने भी समाज में गुस्ताखियाँ कर रहे हो, नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, वो तुम्हारे लिए एक काफ़ी है, बाइस बख्शिश हो जाएंगे। नहीं अज़ान मोहतरम, बाइस बख्शिश तब होंगे कि जब तुम अपने अखलाक में अखलाक मोहम्मदी को लेकर आओगे। अज़ान मोहतरम, बस मैंने अपनी बात तमाम की और ये आखिरी नुक्ता अपने आपके दरमियान अर्ज़ करता चला जाऊँ कि चूँकि आज का रोज़े विलादत है, कुछ जगह पे शब विलादत है, तो बस परवरदिगार की बारगाह में ये भी हमें हमेशा दुआ गोर होना चाहिए, अहद करना चाहिए कि परवरदिगार हम आज के दिन ये अहद करना चाहते हैं कि परवरदिगार की जो जो तूने अपने मोहम्मद के ज़रिए हम तक पहुँचाया है, हम उस पर अमल बखूबी अंजाम देंगे। बस मैंने अपनी बात तमाम की और दुआ गो हूँ आखिर में परवरदिगार की बारगाह में, परवरदिगार हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमाए। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जितने भी लोग परेशान हाल हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मालिक जितने भी लोग बे औलाद हैं उनको औलाद सालेह अता फरमा। मेरे मालिक तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, जितने भी लोग बीमार हैं और इस बीमारी में मुब्तला हैं उन तमाम लोगों को शिफाए कामिला अता फरमा। हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील अता फरमा और उनके अंसार में होने का शरफ़ हासिल फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।